مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال الله تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ معزز دوستو، خوشی باعث مسرت باعث صد افتخار ہے کہ اس جیسے کورسز کا آغاز آپ کے اس علاقے میں ہوا ہے۔ صرف ربیع الاول میں نہ کریں بلکہ اس کا دائرہ کار بڑھائیں۔ رمضان المبارک میں استقبال رمضان پہ ہو، اگرچہ سہ روزہ ہو، اعتکاف کورس ہو، اور اس کے ساتھ محرم الحرام میں عشرہ مناقب صحابہ و اہل بیت ہو، اور اسی طرح سبق کے انداز میں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اس تعمیری کام کے صدقے اس امت میں عقائد، مسائل، فضائل، دلائل کی اجاگری کا اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ سیرت النبی کے کس پہلو کو میں عرض کروں؟ تمام پہلو آپ کے سامنے آئیں گے، میں آپ کی خدمت میں صرف دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، میرے نبی کی سیرت کا آغاز کب سے ہے؟ نمبر دو، میرے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اگر ہم سیرت کے آغاز کو دیکھیں تو سیرت کہتے ہیں حالت کو۔ قرآن کریم میں ہے سنعیدها سیرتها الاولی، اللہ نے سیرت کو حالت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ تو سیرت کا معنی حالات، سیرت کا معنی حالت، سیرت کا معنی واقعات، سیرت کا معنی کیفیات، سیرت کا معنی کردار، سیرت کا معنی کریکٹر، یہ ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کسی کے حالات، واقعات، کیریئر، کردار، کریکٹر تب شروع ہوتا ہے جب وہ کسی کے سامنے آئے، بات کرے، گفتگو کرے، اس کی باتیں، اس کے تذکرے شروع ہوں، پھر اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، مولانا بلال حمید کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اللہ انہیں عطا فرمائے۔ اس بچے کے آنے کے بعد اس کی سیرت شروع ہوگی، حالات شروع ہوں گے، واقعات شروع ہوں گے۔ وہ آیا نہ ہو، پہلے کون کہے گا بیٹا ایسے ہے، پہلے کون کہے گا بچے کے حالات ایسے ہیں، آنے کے بعد سیرت شروع ہوتی ہے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر ایسے نہیں ہیں جو دنیا میں آئیں پھر سیرت کا آغاز ہو، ایسا نہیں ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں جو آیا جانے کے لیے، وہ ایک ہمارا پیغمبر ہے جو آیا ہے آ جانے اور چھا جانے کے لیے۔ تو ہمارے پاک پیغمبر کی سیرت کا آغاز ان کے آنے سے پہلے، ہمارے پاک پیغمبر کے واقعات، تذکرے، چرچوں کا آغاز ان کے مبعوث اور پیدائش سے پہلے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب رب نے پیدا فرمایا، حضرت عمر کی روایت مستدرک علی الصحیحین للحاکم میں ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول نے حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر سناتے ہوئے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت آدم فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا اور میں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے میں نے اللہ کے رسول کا نام، حضور اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے رب کے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا۔ جب انہوں نے اپنے بھول کی معافی مانگی تو یہی واسطہ عرض کیا، اللہ مجھے حضور نبی کریم علیہ التحیت و تسلیم کے واسطے وسیلے سے بخش دے۔ رب نے پوچھا کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ،
ابھی تو وہ پیدا ہو کر دنیا میں نہیں آئے، آپ ان کا تعارف کیسے رکھتے ہیں؟ کہا میرے رب لما خلقتنی بیدک، آپ نے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرعیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، میں اس بات پر یقین لے آیا، ایمان اور مضبوطی لے آیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ کندہ ہے وہ آپ کی محبوب ترین مخلوق ہے۔ تو میرے نبی کے چرچے تو اس کے آنے سے پہلے ہیں، اس کی سیرت تو اس کے آنے سے پہلے ہے، اس کے حالات اور واقعات تو اس کے آنے سے پہلے ہے۔ تو میرے نبی کی سیرت صرف سیرت نہیں ہے، یہ السیرت ہے، یہ السیر ہے، یہ افضل السیر ہے، یہ اکرم السیر ہے، یہ اشرف السیر ہے۔ اس سے بڑی سیرت اس کائنات میں نہ بنی ہے نہ بن پائے۔ نمبر 2، ہمارے نبی کی سیرت میں، کردار میں مرتبہ مقام کیا ہے؟ میرے دوستو، میرے نبی کے کردار، مقام اور مرتبے کو رب نے ایسے نہیں بنایا کوئی اتفاقی بن گیا ہو، جی نہیں، بلکہ بڑے اہتمام سے انہیں بنایا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے پھول اور پھولوں کا گلدستہ آپس میں ایک دوسرے سے ریلیشن رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، ایک دوسرے سے رشتہ رکھتا ہے، ویسے میرے نبی کی سیرتیں اور باقی انبیاء کی سیر آپس میں ایسے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے جس کو مرتبہ دینا چاہا وہ اسے بعد میں ملا، رسول اللہ کو پہلے ملا۔ جو رتبہ دینا چاہا، جس کو چاہا اسے بعد میں ملا، حضور پاک کو پہلے ملا۔ جو مقام دینا چاہا، جسے چاہا اسے بعد میں دیا، حضور پاک کو پہلے دیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کی مثال پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک بات کر رہا ہوں۔ اماں جان ام المؤمنین سیدہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک بازار مصر میں لگا تھا اور وہاں وقت کے پیغمبر حضرت یوسف ابن یعقوب کی بولی لگی تھی اور اس کو خریدنے بڑے بڑے خریدار آئے تھے اور لوگوں نے پیسہ مال لگایا اور اپنے پیسے کو انویسٹ کیا تاکہ ہم اسے خرید سکیں۔ اسے کوئی نہ خرید سکا۔ بادشاہ کی بادشاہ زادی خرید کے لائی، کہا لوگوں نے پیسہ لگایا کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں انہوں نے سنا تھا۔ کہا او عورتوں، مصر کی رہنے والیوں، اوے مصر کے پیسہ انویسٹ کرنے والے لوگوں، لو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ، اے کاش تم محمد الرسول اللہ کے رخسار کو دیکھ لیتے۔ اوصاف خدہ، خد چھوڑیں، رخسار چھوڑیں، اس کے وصف کا تذکرہ سن لیتے۔ لو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ ما بذلوا فی سوم یوسف من نقدی، یقیناً آپ کا فیصلہ بدل جاتا۔ ہم نے پیسہ ادھر نہیں ادھر دیدار پہ لگانا ہے۔ ما بذلوا فی سوم یوسف من نقدی لوامی زلیخۃ لو رأین جبینہ، مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا، وہ جسے خرید کے لائی ہے وہ تمہارا خزر خرید گویا کہ غلام بنا، اس پر عاشق ہو گئی، اتنی فریفتہ ہو گئی، خاوند کے ہونے کے باوجود رونا پیٹنا اس کے پیچھے شروع کر دیا اور ہائی طلاق کا دعویٰ کر بیٹھی۔ یہ کیا ہوا؟ تو مصر کی عورتوں کا یہ تانا یوسف علیہ السلام کے لیے ٹوٹا جب ان کے ہاتھ میں پھل اور چھری دی تو یہ بھی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، انہوں نے اپنے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا، اکبرنہ، بہت بڑی بات سمجھی، وَقُلْنَا، اور یہ بول اٹھیں، حاشا للہ، واہ میرے مولا تیری کرامت، ما ھذا بشرا، یہ انسانیت سے اوپر، ان ھذا الا ملک کریم، جیسے کوئی مقرب فرشتہ ہو۔ یہ کہہ بیٹھی تھی تو کہا تم کہنے والیوں میری بات بھی سنو، میری بات بھی سنو، لوامی زلیخۃ لو رأین جبینہ، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے فریفتہ ہونے پر زلیخا کو تانا دینا تمہارا الگ، لیکن اگر میرے پاک پیغمبر کی جبین، حضور کا ماتھا مبارک
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रो हेड मुबारक हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की पेशानी को देख लेती, लअथरना बिलक़त्इ क़ुलूबहुन्ना अलल यदी, फिर हाथ न कटते तुम्हारे दिल कट जाते। मेरे दोस्तों, हाथ से फल पकड़ा था, दूसरे हाथ से छुरी चलाकर काटा था, तो उंगली कटना समझ आती है, ओए दिल पे तो कोई फल नहीं रखता कि इधर रख के मैं छुरी मार के सेब काट लूँ, इधर रख के मैं आम काट लूँ, इधर रख के मैं केला काट लूँ, इधर रख के मैं नाशपाती और अनार काट लूँ, दिल पे तो नहीं रखता। अम्मा जान ने दिल कटने की बात क्यों की है? मैं तसव्वुर में गया, मकाम कंसेप्ट में गया, और मैंने वक़्त की ज़ुबान हाल से अम्मा आयशा के सामने दस्त दराज करते हुए एक बात पूछी, उम्मुल मुमिनीन, आपने रसूलुल्लाह के साथ 9 साल गुजारे हैं और आपने 9 साल अबू बकर सिद्दीक के घर में तरबियत पाई है, 18 साल आपने अल्लाह के रसूल का ज़माना देखा, फिर अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, 48 साल तक आप मुफस्सिरा, मुहद्दिसा, फ़क़ीहा बनकर उम्मत की रहबरी फरमाती रही। बड़े बड़े सहाबा आपके दर पे हाज़री देकर मसला समझना सआदत समझते थे, ये आपने क्या कह दिया? अम्मा, फल तो हाथ में रखकर छुरी से काटा जाता है, सीने पे रख के तो नहीं काटा जाता। आपने मिस्र की औरतों को ताना देकर फरमाया वो अपने दिल काटती, हाथ न काटती। अम्मा, मुझे ये समझ नहीं आया, आप मुझे समझा दें। हमें ज़ुबान हाल में उम्मुल मुमिनीन समझाती हैं, मेरे बेटो थोड़ा समझ के देखो, मेरे पाक पैगंबर का मकाम ये है, ये इमामुल अंबिया हैं, और इमाम वो होता है जिसके आगे भी कोई नहीं होता, बराबर भी कोई नहीं होता। इसका मकाम और मर्तबा इतना है कि अंबिया में इमामत इसने कराई और इसके आगे भी कोई नबी नहीं, इसके बराबर भी कोई नबी नहीं। पता चला ये नबी गुलदस्ता है, बाकी नबी फूल हैं, गुलदस्ते में फूल जमा होते हैं, बाकियों को फूल मिलते हैं, उन्हें मौजज़े मिले, उन्हें रुतबे मिले, उन्हें मकाम मिले, उन्हें मर्तबे मिले, उन्हें हैसियतें मिले, उन्हें दर्जात मिली, लेकिन इससे कुछ फैज़ लेकर उन्हें दिया, इससे कुछ मर्तबा लेकर उन्हें दिया, इससे कुछ मकाम लेकर उन्हें दिया। अम्मा, आपकी इस बात की दलील क्या है? फरमाया, अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ते? अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सुम्मा जाअकुम रसूलुन लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्नहु। अंबिया की जमात हजरत आदम ता ईसा अलैहिमुस्सलाम, तुम अपने अदवार नबुव्वत में जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा दौर नबुव्वत जारी हो, तुम्हारी उम्म तुम्हारा कलमा पढ़ रही हो, तुम अपनी नबुव्वत को फैलाकर लोगों को बताकर समझा चुके हो, और यकायक अगर ऐसा हो जाए कि आमना के दुर्रे यतीम, महबूब किबरिया, रहमत दो आलम, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं, आपकी नबुव्वतें बंद हो जाएंगी, रिसालतें बंद हो जाएंगी, दरजात का मामला एक तरफ, तुम और तुम्हारी उम्मतें लतुमिनुन्न बिही, कलमा हुजूर का पढ़ोगे, वला तंसुरुन्नहु, मदद हुजूर की करोगे। पता चला ये वो हैं, इनसे निकल के उन्हें मिला, इनसे बढ़ के इनसे निकाल के उन्हें मिला, और रुतबे से सरफराज किया तो दर्जा इनका बड़ा था। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मरकज़ नबुव्वत थे, बाकी अंबिया शाख़ नबुव्वत हैं। कहा, ऐसे बेटा, एक बंदे का जिस्म है, जिस्म में भी कुछ शाखें हैं, जिस्म में भी कुछ मरकज़ है। जिस्म का मरकज़ ये दिल है, जिस्म की शाख ये उंगलियां हैं। दिल हुक्म करता है, उंगली अमल करती है। मेरे जी में आया दाएं हाथ रखूं, मेरा हाथ इधर गया, क्यों? दिल का कहना इस शाख ने माना। मैंने कहा बाएं हाथ रखूं, मैंने इधर रखा, दिल का कहना इस उंगली ने माना। कहा, मरकज़ आमिर होता है, शाखें मामूर होती हैं, मरकज़ हुक्मरान होता है, शाखें रियाया होती हैं। मरकज़ हुक्म करता है, शाखें अमल करती हैं। का इसी तरह हुजूर मरकज़ नबुव्वत हैं, बाकी अंबिया शाख नबुव्वत हैं। उन लोगों ने मरकज़ नबुव्वत को नहीं देखा, मिस्र की लड़कियों ने मरकज़ नबुव्वत को न देखा, शाख नबुव्वत को देखा, और शाख नबुव्वत
नबुव्वत में एक वस्फ हुस्न निकल के हजरत यूसुफ को मिला, फरिफ्ता हो गई, उंगलियां कटवा दी। इन्होंने शाख नबुव्वत देखा तो बदन की भी शाख उंगलियों को काटा। ये नबुव्वत का मरकज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखती तो जिस्म का मरकज अपने दिल के ऊपर छुरी चला दे। लव्वामी ज़ुलैखता लौ रअयना जबीनहु, ओए काश मिस्र की लड़कियों तुम रसूलुल्लाह की जबीने मुबारक को देख लेती। लअथरना बिलक़त्इ क़ुलूबहुन्ना अलल यदी, काटने में तुम्हारा इंतखाब हाथ की उंगलियां नहीं जिस्म का दिल होता। हुजूर मरकज़ नबुव्वत, मकाम नबुव्वत, मंबा नबुव्वत, चश्मे नबुव्वत, यहाँ से फैज़ फूटा, मरकज़ें फूटी और एक एक को जाकर मिली। मेरे पाक पैगम्बर का मकाम इतना, मर्तबा इतना, रुतबा इतना, दर्जा इतना, अल्लाह पाक ने जो बाकियों को देना था, जो बाकियों को मौजे देने हैं, इन्हें बदरजे अतम दिए हैं, इन्हें मुकम्मल दिए हैं, इन्हें सबसे बढ़ के दिए हैं। इसलिए मेरे पाक पैगम्बर की सीरत इनके आने से पहले शुरू है, आने से पहले शुरू, आने से पहले आगाज, आने से पहले उसका जो है ना क्या कहते हैं स्टार्टिंग हो चुकी है, अभी आए नहीं है। अंदाज़ा लगाओ जिसके आने से पहले ज़िक्र अल्लाह का अर्श करे, जिसके आने से पहले ज़िक्र आसमान के फरिश्ते जान चुके हों, जिसके आने से पहले का ज़िक्र हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जान चुके हों, उस पाक पैगम्बर का मर्तबा क्या होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुअर्रिख़ इस्लाम अल्लामा ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला फरमाते थे, हो सकता है आवाम के पल्ले न पड़े, खवास आवाम को समझा देंगे, लेकिन मैं मतन दे रहा हूँ, शरह ये लोग आपको कर देंगे। वो कहते हैं हज़रत ईसा को नुज़ूल का मकसद, मबऊसियत का मकसद, ज़मीन पे भेजने के मकासद में एक मकसद हुज़ूर पाक की आमद का ऐलान करवाना था, ताकि ये ऐलान करें मेरे बाद एक पैगम्बर इमामुल अंबिया तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अल्लाह ने इतनी जल्दी में हुजूर के ऐलान में इनको भेजा कि इनके वालिद का इंतज़ार नहीं किया। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, सूरत नंबर 19 सूरत मरियम, वाज़ेह है, रुकू नंबर 2 का एंड हो रहा है। वालिद का इंतज़ार नहीं किया और जब इन्होंने ऐलान कर दिया यअती मिन बाद मुबश्शिरम बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, हुजूर का ऐलान कर लिया तो इनको इतना जल्दी उठाया कि इनकी मौत का इंतज़ार नहीं किया। ठीक है, तो आदम ता ईसा अलैहिमुस्सलाम तमाम के तमाम पाक पैगम्बरों ने जो रुतबे मकाम और मर्तबे और दर्जे पाए हैं वो रसूलुल्लाह के फैज़ से पाए हैं। अब अल्लाह के रसूल का मकाम और मर्तबा क्या होगा। ऐ काश अल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए और अल्लाह आपकी बरकत से मुझे भी ले जाए। मैं रोज़े रसूल पर अपने 2014 के उम्रे के सफ़र में गया। मौलाना शेख़ुत तफ़सीर इमामुल हुदा हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह के सिलसिले के एक बुज़ुर्ग मुझे वहाँ मिले। मुझे फ़रमाने लगे, मुफ्ती साहब हम आपके बयानात से आपसे वाकिफ़ हैं, आप सलात व सलाम का मसला समझाते, बताते, सुनाते, रटवाते रहते हैं, लेकिन मैं भी आपको अपने शेख हज़रत लाहौरी के वास्ते से एक बात अर्ज़ करता हूँ। मैंने कहा जी बताइए। इरशाद कहा, जब हमारे शेख मुकर्रम हज़रत लाहौरी अल्लाह के रसूल के रोज़े पे आते तो सलाम तो पेश हर उम्मती करता है, वो भी करते, दुआ की दरख्वास्त वो भी करते, इस्तिश्फा वो भी करते, जिन दोस्तों ने सलाम भेजा होता वो भी देते, लेकिन एक काम मुनफरिद करते। का वो क्या, का अल्लाह के रसूल ने अपने शफीक चचा हज़रत अली बिन अबी तालिब के वालिद हज़रत अब्द मुनाफ अबू तालिब को कहा था, चचा मेरे कान में कलमा पढ़ ले, मैं एक तेरा गवाह क़यामत में बख्शिश के लिए काफ़ी हो जाऊँगा। का हमारे पास ये ऑप्शन खुला है, हम अहले हक हैं, हम अल्लाह के रसूल से कब्र के सिमा के कायल हैं, अहले हक का अकीदा और नज़रिया है। मेरे पाक पैगम्बर अपनी कब्र में ज़िंदा हैं, इधर से दुरूद व सलाम पढ़ें, फ़रिश्तों की जमातें ले जाती हैं, हुज़ूर पाक की कब्र पे पढ़ें, अल्लाह के रसूल सुनते हैं, हुज़ूर का सिमा कायम है। तो कहा हुज़ूर के रोज़े पर ठहरो, ये सलात व सलाम, ये दुआ, ये इस्तिग़फ़ा, ये सब कुछ करके उसके बाद एक बात कहो, या रसूल अल्लाह आप तो वो हैं, आपको दुश्मनों ने सादिक और अमीन कहा था, आप
सच्चे भी हैं, अमानतदार भी हैं। हत्ता कि आपके दुश्मन जब आपको कत्ल करने हिजरत की रात आए, जिसको कुरान कहता है वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूक कहकर जो आए थे, तलवारें हाथ में थी, नेज़े हाथ में थे, वो संग और तुफंग हाथ में थे, लेकिन उनकी अमानतें आपके घर में थी। आपको वो अमानतदार मानते थे, आप अमीन थे, आपने अमानत में ख़यानत नहीं करनी थी। आज आपका अदना उम्मती अहमद अली लाहौरी आपके सामने ठहर के आपको भी एक अमानत देता है, उस अमानत का अमीन बनाता है। आपने अपने चचा को फरमाया था कलमा पढ़ ले, मैं तेरा गवाह काफ़ी हूँ। मैं अहमद अली आपके सामने आज कलमा पढ़ के अपने ईमान की तजदीद करता हूँ, अपने ईमान का इकरार करता हूँ, अपने इस्लाम का इकरार करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन की जगह हुजूर का नाम न लेते, क्योंकि बड़ा सामने हो नाम नहीं लिया जाता, आप कहा जाता है। फरमाते व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरा कलमा अपने पास अमानत कर लें। मेरे पाक पैगंबर आपकी शरीयत कहती है, आपका दीन कहता है, आपका मज़हब इस्लाम कहता है, आप पे उतरने वाला दीन ये कहता है, किसी काम के लिए जब तुम काम करो, गवाह बनाना चाहो तो कम अज़ कम 2 गवाह चाहिए, वहाँ 2 गवाह चाहिए ताकि बात पक्की हो जाए। मैंने ये अमानत आपको दी है। आज 2 गवाहों का निसाब भी आपके रोज़े में पूरा है। हज़रत अबू बकर भी हैं, हज़रत उमर भी हैं, ये 2 गवाह गवाही देंगे। मैं आपको कलमा पेश कर रहा हूँ। जब कल क़यामत में नफ्सी नफ्सी का आलम हो, जब कल क़यामत का आलम ये हो जिसे कुरान कहता है औरतें अपना हमल गिरा देगी, जिसे कुरान कहता है माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को खुद से जुदा कर देगी, बाप बेटी से, माँ बेटे से, बहन भाई से, खावन बीवी से एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, लेकिन आप होंगे जो उम्मती फरमाएंगे उधर मैं आपकी खिदमत में आकर ये अमानत मांगूंगा, आप अल्लाह के दरबार में मेरे कलमे की अमानत पेश कर देना, मुझे जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह आपको रसूलुल्लाह के रोज़े पे ले जाए, ये अमानत वहाँ ज़रूर पेश करना ताकि हमारे कलमे के ईमान की गवाह भी अल्लाह के रसूलों में लगे हाथों आखिरी बात करके बात ख़त्म करने लगा हो। आज फरिश्ते इस बात की महफिल के गवाह हैं। आप भी एक बार कलमा पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ मेरे मौला मुझ आजिज़ समेत इन लोगों के इस कलमे को फरिश्तों के ज़रिए रसूलुल्लाह तक पहुँचा दे और हमारी इस अमानत के हुजूर अमीन बन जाएं। कल क़यामत में जब हमें आपके दरबार में कलमे की ज़रूरत पड़े, हमें हुजूर के हाथों ये अमानत मिल जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पूछते हैं कि रज़ी अल्लाह अन्हो सिर्फ़ सहाबा को कहना चाहिए या मुहद्दिस गौस कुतुब वली को भी बोल सकते हैं या नहीं, या वलियों को रहमहुल्लाह कहें। मेरे दोस्तों, सहाबा और ताबईन का और बाद के बुज़ुर्गों का जो मसला है ना, एक एक का टाइटल है पहचान के लिए। अब देखो ना, हज़रत मौलाना ये किन्हें कहा जाता है? एक आलिम दीन को। आप हज़रत मौलाना अगर किसी और पे कहेंगे तो अगले को शक होगा कहीं आलिम तो नहीं है, शक पड़ जाएगा। इसलिए रज़ी अल्लाह अन्हो अच्छी बात है, सहाबा के लिए कहें। और अगर किसी ताबी के लिए रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं तो उसके लिए एक शर्त है कि वो नाम सहाबा में मौजूद न हो, फिर आप कह सकते हैं। मसलन इमाम हसन बसरी हैं और हज़रत हसन भी हैं, सहाबी हैं, हसन बसरी ताबी हैं, तो इसीलिए जब हसन बसरी का नाम होगा रहमहुल्लाह कहेंगे पहचान के लिए, रज़ी अल्लाह अन्हु कहेंगे हज़रत इमाम हसन के लिए। इसलिए फ़र्क है। जैसे इमाम अबू हनीफ़ा हैं, अबू हनीफ़ा नाम का कोई सहाबी नहीं है, अब रज़ी अल्लाह अन्हु कह सकते हैं क्योंकि इल्तिबास नहीं हो सकता। और अगर नुअमान की बात आए इमाम साहब के नाम की तो फिर रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं कहेंगे, क्योंकि सहाबा में नुअमान इब्न मुक़र्रिन नाम के सहाबी मौजूद हैं। जज़ाकुम।